is from a company called Morpho, who are certified by Aadhaar, and all the Aadhaar enabled biometric capturing which has been done across the India, across the country, is something which has been done by Morpho device and another company's device basically, and these are all Aadhaar enabled devices, So this is like a company from France, and it has got a user capacity of 500 users. It has got a built-in Wi-Fi and Bluetooth in it, and this Morpho thing is basically like in a car. Apart from whatever else you see, how good it is to look at and what are the features, but the main thing which matters is basically engine in the car. The same way in a biometric system, what matters is the sensor which is being installed over here, and this is Morpho sensor, which is what basically is a kind of thing which gives you a kind of a feel that this is what is going to work for people like security guards who are not so tech savvy, number one. Number two, they are like the people whose hands may not be clean enough, or maybe they will be like sort of exposed to a lot of weather conditions and stuff. So this particular sensor which we are using is going to give you all that functionality which for this particular use case you may be looking at. So with Right, this right. small this thing introduction, I would like to probably go ahead. Any questions? You can interrupt me anytime, sir. Anytime. Sure, Okay. sure. Okay. Okay. Then it has got a Wi-Fi, which is basically something which, is good way to communicate with the mobile app. And once we are talking with the mobile app through Wi-Fi, this is something which becomes absolutely wireless. So there's no wire to be connected to download the data, which is normally in a guard tour monitoring system of a conventional nature. You will find some sort of a cable which is being connected. So here there is no cable, it is absolutely wireless. So either through Wi-Fi or Bluetooth, the communication would happen. That's Great. another, yeah, sorry. No, no, I said like that is something nice. Like no wire, it's completely wireless. Then there is a ease of mobility, right? Absolutely right, sir. So this is like something which maybe I'm just trying to draw some kind of differences also while I'm explaining these things. So the conventional systems are all wired systems, and the ones which we are talking about is an unwired system basically. So apart from the morpho sensor, the wireless part of it, and also the size, the other things which are important is the battery life, which is 1700 mAh, which is there. The charging is through a normal USB charging, so any mobile charger would be useful to charge this. There's a LED for access allowed and denied, which is for maybe the security guards who are not tech savvy. So they, in case their fingers are for some reason not being identified, I mean it will be shown on a display as well as on a LED, which will be red or a green, depending on the acceptance, or I mean depending on rejection or acceptance, basically. Okay. Then like it has got a display, bright display, which is white, bright white characters in blue backlight, which is visible even during the bright sunlight condition. So unlike a lot of other products, basically, which you find that if you probably see it in a bright sunlight condition, you can't really read them. But this particular LCD is readable during the sunlight as well, basically. So that's again something which probably functionally it does not add value, but while it comes to while we see our mobile, and if in a bright sunlight we can't see anything, then we feel bit irritated. So that is basically something which we have taken care of with respect to this LCD display which is there. Right. Okay. Then apart from that, we are using the latest technology. I mean, Mr. Umang, I don't know whether this IoT thing which is written over Yeah, here. Internet of Things. Yeah, yeah. Like Yeah. I'm bit into it, so we can jump onto this optional things. Like if you don't mind, sir. Like built-in GPS. Like these are the options for the devices, the add-in functions that we can have. Right. These are the add-in functions which you can have. So in case you want to do GPS tracking also, you can have this particular feature. If you do not want to depend on your Wi-Fi, you can have 2G SIM card.
and then there's a built-in RF or a MyFair card reader, which is for reading the guard tour tags, basically, So this is the thing, and the size which you can see over here, it is like, for guard tour patrolling system, it is 95 mm, which is less than 4 inches, and width is 64 mm, which is just 2.5 inches, and depth is 28 inch, basically, which is maybe just around 1 inch, basically, which includes everything, which is battery, the charging circuit, the biometric, and all the functionally whatever I've explained, So this is what basically the size and form factor of the devices, So with this, I go to straight away to the business part, which is a use case. So the use case with this particular device is that, you want to do guard tour patrolling, which is like, functionally what you want to achieve using this particular device, So as part of any kind of, guard tour monitoring thing, the thing which you need to do is basically you need to define the guard tours, So maybe typically, to take examples, in a guard tour, you will have some checkpoints, and your guards basically are supposed to travel on a particular guard tour depending on the function. I mean, the allocation. They have to go serially into various checkpoints so that you can actually see whether these guards, I mean, these points basically which are there, they are being covered or not, and they are like, what time they were there. In case of a trackability, you can do all this, So like, you can download the guard tour name, which is basically, let's say, factory one, or factory one main gate, or factory one back gate, or factory one, let's say, the material gate, or whatever the case may be. And the friendly name is something which is associated with checkpoints against each patrol. So you can have up to 50 checkpoints being defined against a particular guard tour. So you can have multiple guard tours. You can have checkpoints basically which are mapped to the guard tours, and the checkpoints also are having a friendly name which you can define, which is like, maybe just give me a moment, sir. I'll just interrupt over here just to give a heads up to Mithun ji. So what we basically mean is कि हम plant में जब गए अपन, वो समझ गया, but if it should be a particular route, वो define करना चाहिए, या he can go anywhere and दोनों ऑप्शन है. चेक पॉइंट्स खाली वो कवर करेगा, दोनों ऑप्शन है. एक ऑप्शन ये है जहाँ पे हम लोग रूट डिफाइन कर देंगे कि गेट से निकलेगा तो उसको स्टोर में जाना है, उसको फ्लोर पे जाना है, तो उसको वो सारे पॉइंट्स को देखते हुए जाना है. दूसरा है कि हम वो चीज़ ओपन, सारे टैग्स हमने लगा दिए, वो जो चीज़ स्कैन करेगा ऑटोमेटिकली एक रूट बन जाएगा. ओके. तो दोनों ऑप्शन अपने पास अवेलेबल रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो एक डिवाइस वो 50 चेक पॉइंट्स रख सकते हैं. ओके. 50 चेक पॉइंट्स इसमें एक टूर में, एक रूट में 50 रख सकते हैं. उसको आपको अगर बढ़ाना है, वी कैन गो अप टू 100 आल्सो, नो प्रॉब्लम. बट 50 में नॉर्मली काम हो जाता है, क्योंकि मतलब उससे ज्यादा होने से वो ट्रैकेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, बोल के हमने 50 रखा. बट इफ यू वांट इट टू बी मोर, तो आपने मान लीजिए एक गार्ड टूर डिफाइन किया, तो उसमें आपने चेक पॉइंट्स डिफाइन किए कि उसको जिस हिसाब से जाने का है, वो आप 50 पॉइंट तक एक पर्टिकुलर टूर के लिए डिफाइन कर सकते हैं. ओके. एक्सटेंडेबल अप टू 100. ओके. अंडरस्टूड सर. एंड देन यू कैन डिफाइन द नेम्स बेसिकली, तो अभी आपका जैसे मान लीजिए आपका जो भी नाम से आप उस चेक पॉइंट जाते हैं, that is all right. Understood. Okay, sir. Now, how does the entire thing operates basically? There's a small slide which, like, I have made out of it before I go to the videos and some online things. So अभी इसमें क्या होता है साहब कि इसमें हम लोग एक मोबाइल ऐप देते हैं basically, Umang sir, are you there? Yes, sir. Yeah. So what we do is basically, this is again something which is a differential thinking. अभी तक जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे वो एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता था. उस क्लाइंट सॉफ्टवेयर को आप पीसी पे लोड करते थे और पीसी पे ये सब काम करते थे बेसिकली. करेक्ट. अब इसको और सिंपल बना दिया है विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. पीपल वांट एवरीथिंग ऑन देयर फिंगर टिप्स बेसिकली, तो अभी मान लीजिए आपका एक मोबाइल ऐप जो है, वो मोबाइल ऐप के जरिए आप सारा काम कर सकते हैं.
इफ आई ब्लोट इट अप, आप बेसिकली जो मैंने इसकी पिछली वाली स्लाइड में बोला कि आपको पेट्रोल टूर डिफाइन करना है, आप पेट्रोल टूर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको बेसिकली पेट्रोल टूर के अगेंस्ट में जो चेक पॉइंट्स है वो डिफाइन करने हैं, वो आप डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग अ मोबाइल ऐप। एंड ये जो आपने डिफाइन किया है, इसको आप डिवाइस पे डाउनलोड कर सकते हैं वायरलेसली विदाउट एनी पीसी। तो आपको पीसी की जरूरत नहीं है। जो कन्वेंशनल सिस्टम में एक पीसी की जरूरत होती थी, वायर की जरूरत होती थी। हाँ, डेटा ट्रांसफरिंग बेसिकली अभी हमारा जो है वो वायरलेस होने लग गया है, वायरलेस होने लग गया एंड थ्रू मोबाइल ऐप होने लग गया। तो ना तो आपको लैपटॉप की या डेस्कटॉप की जरूरत है, ना आपको बेसिकली कोई वायर की जरूरत है। अच्छा, और जैसे सर ये कितने मतलब कितना डेटा ये स्टोरेज, जैसे एग्जांपल हम बात करें तो इसका मतलब एक दिन का बैकअप रखते हैं, ये जैसे ट्रांसफर जो होता है वो हमें हर ट्रिप के बाद के 24 आवर्स में एक बार हम करें, वो कुछ लिमिटेशन है इसका, कैसे रहेगा? सर मैं अभी इसको आपको while I am just trying to get this particular thing answered, इसमें क्या होता है साहब कि इसमें हम मोबाइल ऐप में मैंने डिवाइस में एक मेमोरी है, डिवाइस की जो मेमोरी है, अभी जैसे आपने क्या किया, गार्ड टूर को एक एलोकेट करके दे दिया कि इसको इस टूर पे जाने का है, तो उसको दे दिया। डिवाइस तो अब गार्ड के पास में है, गार्ड डिवाइस को लेके अब टूरिंग कर रहा है, ठीक है। करेक्ट। वो टूरिंग कर रहा है, जब वो अटेंडेंस दे रहा है तो अटेंडेंस देने के पहले उसको क्या करना पड़ेगा, वो अपना चेक पॉइंट पे जाएगा, चेक पॉइंट पे जाके वो अपना वहां पे जो टैग लगाया है उसको टैग को स्कैन करेगा। टैग को स्कैन करने से डिवाइस को मालूम पड़ जाएगा कि वो चेक पॉइंट पे आ गया है, और जो चेक पॉइंट पे आया है वो लीगल चेक पॉइंट है, मतलब जो उसके गार्ड टूर में डिफाइन किया हुआ है और डिस्टेंस को अभी होना चाहिए था। जैसे वो वैलिडेशन हो जाएगा डिवाइस में, तब उसकी जो फिंगरप्रिंट रीडर है वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तब सिस्टम उसको प्रॉम्प्ट करेगा कि अपने आप फिंगर लगाइए। अगर आप फिंगर लगाएंगे और फिंगर मैच करेगी जो गार्ड को एलोकेट किया गया है ये डिवाइस, तब वो बेसिकली वो अटेंडेंस कैप्चर हो जाएगी। एंड उसके साथ साथ डिवाइस में ये दिखाया जाएगा कि आपने ये चेक पॉइंट कवर कर लिया है, आपका नेक्स्ट चेक पॉइंट जो है पॉइंट 2 है, जिसका नाम दिखाएगा डिवाइस के ऊपर में, ताकि वो स्किप ना करे। मतलब कई बार क्या होता है कि हम मतलब हमको जानना पड़ता है कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, पॉइंट बी से पॉइंट सी जाना है। तो अगर आपके नए नए सिक्योरिटी गार्ड्स भी आएंगे और अगर उनको बेसिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको डिवाइस में दिखेगा डिस्प्ले पे कि उसको नेक्स्ट चेक पॉइंट कहाँ पे जाने का है बेसिकली, तो ये उसको दिखेगा और फिर वो ट्रेवल करेगा नेक्स्ट चेक पॉइंट पे। नेक्स्ट चेक पॉइंट पे जब ट्रेवल करेगा, वहां पे वापस जो टैग लगाया हुआ है वहां पे वो स्कैन करेगा टैग को। जैसे ही टैग को स्कैन करेगा, उसको चेक पॉइंट 2 वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द नेक्स्ट schedule or the next trip, in this trip basically there is a next checkpoint, वो अगर वैलिडेट हो जाएगा डिवाइस साइड में कि यस नेक्स्ट चेक पॉइंट मेरे डिवाइस में यही प्रोग्राम किया गया और वो इसी चेक पॉइंट पे आ गया, तो फिर वापस फिंगरप्रिंट जो है वो जल उठेगी और वो उसको फिंगर लगाना है, उसी गार्ड को फिंगर लगाना है। तो जो पहला गार्ड जिसने पहले चेक पॉइंट पे फिंगर लगाया था, अगर उसके अलावा कोई दूसरा गार्ड फिंगर लगा देता है कि मैंने फर्स्ट चेक पॉइंट करके मैंने अपने बच्चे को दे दिया, भैया तू जाके कर दे सारा काम, तो वो नहीं कर सकेगा। तो जिसने इसको शुरुआत की है इस गार्ड टूर को, उसी की फिंगरप्रिंट उसकी हर मतलब 10 चेक पॉइंट्स है तो 10 चेक पॉइंट्स तक उनको ही जाना पड़ेगा, मतलब 5 और 5 करके वो डिवाइड नहीं कर सकता, मतलब वो पूरा जो पेट्रोलिंग है वो एक ही बंदे को करना है। करेक्ट है सर। अगर दूसरा बंदा लेगा तो उसको वापस चेक पॉइंट 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। तो उसको या तो चेक पॉइंट 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा या प्रीवियस वाले जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है उसको शॉर्ट क्लोज करना पड़ेगा। कोई रीजन हो गया, मान लीजिए उसको कहीं पे शॉर्ट क्लोज करना पड़ेगा उसको। करेक्ट। तो अगेन मैं गोइंग बैक टू माय बेसिक क्वेश्चन था, तो ऐसा ही है जैसे उन लोग ने समझो 3 गार्ड है, वो एक घंटे में घूम घूम के तीन अपने मतलब 3 बार उन्होंने अपना पेट्रोलिंग कर लिया, और उसके तो ये अब वो लोग मोबाइल डिवाइस से जो ये डेटा ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, या वाईफाई के थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल चेक पॉइंट्स पे ये अपलोड होते जाएगा अपने सॉफ्टवेयर में, मतलब सिस्टम में, कि ये जब आके वो जहाँ पे भी मोबाइल पड़ा है या अपना जिस मोबाइल, क्योंकि ब्लूटूथ का रिक्वायरमेंट होगा ना इसको डेटा ट्रांसफर के लिए, राइट सर। तो आप जब अपने वापस से समझो अपने गेट पे आके जब बैठता है तो सारे डेटा एक साथ वो अपलोड होगा अपना,
कैसे होता है सर ये? राइट, मैं बताता हूँ सर। तो अभी क्या हुआ कि ये जब पूरा गार्ड टूर कर लिया तो ये डिवाइस बेसिकली आपके बेस स्टेशन पे आ गया, जहाँ पे आपने बेसिकली अपना आपके सिक्योरिटी गार्ड्स जो बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, या जो मेन गेट है अपना वहां पे आ गए, ठीक है। वहां पे आ गया। वहां पे आपका जो मेन सुपरवाइजर है उसके ऐप के साथ में उसने वायरलेसली कनेक्ट किया और डिवाइस से डेटा सारा उठा लिया। और जैसे ही डेटा डिवाइस से डेटा उठा लिया, अब डिवाइस का सारा डेटा आपके मोबाइल ऐप पे आ गया। करेक्ट। और मोबाइल ऐप पे आने के बाद में अब मोबाइल ऐप से वो बंदा जो आपका सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, जिसको ना तो किसी लैपटॉप की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है, इंटरनेट की जरूरत है, ये सारा डेटा अभी उसके ऐप में आ गया है। तो मेरे जैसे हर गेट पे अगर कंप्यूटर अवेलेबल है सर, हाँ सपोज हाँ मैं उसमें ब्लूटूथ वाला आजकल जो डिवाइस आता है वो लगा देता हूँ, हाँ तो हाँ। डायरेक्टली मैं ब्लूटूथ के थ्रू अपने पीसी में भी ले सकता हूँ कि वो मोबाइल ऐप होना मैंडेटरी है मेरे लिए? अ, अभी जैसा हमने पूरा वर्कफ्लो बनाया हुआ है सब, उसमें चूंकि सब जगह पे पीसीज नहीं रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के पास में, तो हमने इसका जो फ्लो बनाया हुआ है वो ऐसा ही बनाया हुआ है कि आप मोबाइल ऐप में ले लीजिए, मोबाइल ऐप से फिर आप अपने सर्वर के ऊपर में सिंक कर दीजिए। हाँ, तो मतलब बेसिकली अपने लिए जो मोबाइल ऐप, एक जन के पास स्मार्टफोन हो गए उसमें वो ऐप होना जरूरी है, करेक्ट सर। और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट। जैसे ये अगेन गोइंग बैक टू माय ओरिजिनल क्वेश्चन कि ये हर पेट्रोलिंग के बाद उन्होंने करे कि दिन में एक बार वो डिवाइस को बेस स्टेशन पे कनेक्ट कर दे, जैसे दिन में वो 10 बार पेट्रोलिंग करते हैं? तो ऐसा है सर कि आप दिन में 10 बार भी इसको आप सिंक कर सकते हैं, दिन में एक बार भी सिंक कर सकते हैं। कि मान लीजिए जैसे ही आपका डिवाइस पेट्रोल करके अगर बेस स्टेशन पे आता है, तो बेस स्टेशन में तुरंत अगर वो आपका जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर है वो अवेलेबल है तो उसने उसको सिंक कर लिया, और नहीं भी किया तो डिवाइस में बेसिकली आपका 50,000 डेटा सेव्ड रहता है वहां पे। हाँ, मेरा मेन यही था, क्योंकि मेरा ये था कि जैसे नॉर्मली क्या होता है सर, नाइट शिफ्ट वाले ज्यादातर आपके सिक्योरिटी वाले वो स्मार्टफोन नहीं रखते हैं, बहुत जगह पे चोरी हो जाएगा, जो भी रीजन है हम राइट। लोग के केस में। तो जो मॉर्निंग में जो सीनियर सुपरवाइजर आता है, तो रात वाले ने क्या किया, वो अपना डिवाइस जो है वो उसको कनेक्ट किया, डेटा अपलोड हो गया। तो नाइट में अगर उसने 10 बार पेट्रोलिंग की, तो मेरा खाली डाउट ये था कि वो ओवरराइट नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो कि मुझे सिर्फ 10th ट्रिप का बारे में पता चले और पहले 9 के बारे में मुझे पता ना चले, बिल्कुल इसलिए सर, मैंने बिल्कुल। आपसे पूछा। राइट। तो आपकी ये जो पॉइंट है सर, इसमें मैं आपको वापस रिकन्फर्म करता हूँ कि इसमें मान लीजिए आपका एक एग्जांपल देके बोलता हूँ कि एक ट्रिप में 50 पॉइंट्स हैं, तो जी 50 पॉइंट की अगर उसमें 100 ट्रिप का भी डेटा अगर इसमें पड़ा हुआ है तभी भी आपका डेटा यहाँ पे सेव्ड रहेगा। तो ओके वो 5,000 होता है, मेरे पास 50,000 रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे बेसिकली। ओके, ग्रेट सर, चलो। राइट। ऑटो डिलीट हो जाता है और या फिर ये आर्काइव, जैसे ये जब एक बार हो गया तो हाँ, जनरली ये फिर बस वो 50,000 तक लिमिट होगा, उसके बाद अपने आप डिलीट होते जाएगा, वैसा है? ये ये सर इट्स बेसिकली सर्कुलर बफर। तो वो ओवरराइट होता रहता है। लास्ट 50,000 डेटा, जैसे ही 50,000 फर्स्ट डेटा जब आएगा तो वो वापस सर्कुलर बफर में ऊपर में जाके इसको ओवरराइट कर देगा। तो ओके, लास्ट मतलब उल्टा, 50,000 आज जो नंबर 1 है तो 50,000 फर्स्ट ट्रिप जो होगा तो नंबर 1 को रिप्लेस कर देगा। राइट सर, राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट सर। योर पॉइंट इज लाइक आपने जो बोला है वही सही है बेसिकली। सर्कुलर बफर इज दैट इज व्हाट आई एम मीनिंग जीरो बाय। नहीं होगा, आपके डिवाइस में 50,000 ट्रिप्स तक तो दिखेगा ही, मतलब हाँ, उसके पास स्टोरेज है ही है वो। 50,000 ट्रिप डिवाइस में 50,000 रिकॉर्ड्स है, नॉट ट्रिप। रिकॉर्ड्स, 50,000 रिकॉर्ड, वो पॉइंट्स इनटू ट्रिप्स, मतलब जितना भी आपने ट्रिप किया और जितने पॉइंट्स है वो आपका 50,000 वो हो जाएंगे। जैसे आप इस एग्जांपल में बोले कि मतलब 50 चेक पॉइंट है और 10 ट्रिप लगाया तो 500 डेटा हो गया, और ऐसा 50,000 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो, करेक्ट? एब्सोल्युटली राइट सर, राइट, राइट, राइट। और ये डेटा एक बार आपने मोबाइल ऐप में सिंक कर लिया ना सर, तो ये डेटा आपके मोबाइल ऐप में आ गया। और मोबाइल ऐप में आने के बाद में ये सारा डेटा अब बेसिकली मोबाइल में सेव हो रहा है। और आप लोगों का अभी चूंकि आप लोगों ने ये भी चाहा है कि आप इसको आप वेब ऐप पे भी सिंक करेंगे, क्योंकि आपकी मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं और मल्टीपल फैक्ट्रीज में मल्टीपल सिक्योरिटी वाले लोग रहेंगे। और आपका एक सेंट्रलाइज शिफ्ट या सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो मिस्टर शायद कांता है, जो चाहेंगे कि उनकी जितने भी आपकी फैक्ट्रीज है उसका सब डेटा वो एक जगह पे देखें। तो उसके लिए ये मोबाइल ऐप में जो इंडिविजुअल फैक्ट्रीज में जो डेटा कैप्चर हुआ है, ये डेटा आपके क्लाउड पे चला जाएगा। एंड क्लाउड पे चला गया मतलब अब जितनी भी जगह पे जितने भी
जो लोकल सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स हैं उन्होंने डेटा कैप्चर किया, उसको मोबाइल के थ्रू उसको क्लाउड पे सिंक कर दिया, और क्लाउड पे जैसे ही सिंक कर दिया अब ये सारा डेटा क्लाउड पे है. सो देयर आर 3 प्लेसेस द डेटा आर देयर. इट इज देयर इन द डिवाइस, it is there on the mobile app, and plus it is, once it is being synced to the server, then it is there in the server also. Right. So I don't know whether this is the right time for this question, but when we say, suppose keeping myself in Kamtaji's shoes, so what I also wish to have is the consolidated data, as in, like, there are currently I have 20 plants. For each plant I will have like 20 device, say example, one device, one for each plant. So when we say it's in cloud, so each this 20 applications के थ्रू ये अलग अलग जगहों से अपलोड हो गया, अपने अपने गार्ड्स ने कर दिया. तो ये जो फिर एक कॉमन आईडी के थ्रू मैं ये डेटा पुल कर सकता हूँ. करेक्ट. आपको कॉमन आईडी के थ्रू डेटा ऊपर आ जाएगा. अब वो जैसे ही मोबाइल ऐप में, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वो आपका वेब ऐप में जब जाएंगे कांता जी, और कांता जी जाके बोलेंगे मुझे, मानिए आपका क्या एक लोकेशन का नाम बोलिए साहब, जैसे कटनी ले लीजिए या वाड़ा ले लीजिए, मुंबई वाड़ा. वाड़ा में प्लांट 1 का मुझे डेटा देखना है. तो हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है OU. OU means organization unit, basically, you know. So organization unit is basically something. स्नेहा जी शायद अभी लॉग इन कर रही हैं वापस. अच्छा, तो अभी हमारे यहाँ पे क्या है साहब कि बेसिकली लाइक यू नो देयर इज अ OU concept. OU means organization unit. तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बना लीजिए. वाड़ा प्लांट 1, वाड़ा प्लांट 2, वाड़ा प्लांट 3, फिर मान लीजिए कटनी प्लांट 1, कटनी प्लांट 2, कटनी प्लांट 3. इस तरह से आपके ऑल इंडिया में शायद 17 प्लांट्स हैं. वो 17 प्लांट्स आपके 17 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स बन जाएंगे. और ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स में कौन कौन से डिवाइसेस आपने लगा रखे हैं, वो डिवाइसेस हमारे ऊपर में मैप हो जाएगा. और अब आप बोलेंगे कि मुझे वाड़ा का रिपोर्ट चाहिए, तो आप वाड़ा को सिलेक्ट करेंगे और वाड़ा की रिपोर्ट निकालेंगे बेसिकली. ओके, तो बेसिकली हमें एक मास्टर मैपिंग करना होगा ये बस वन टाइम. वन टाइम दैट इज फॉर प्लांट एंड डिवाइस का मैपिंग. राइट. परफेक्ट. ओके. तो ये आपका जो सर सिस्टम है, ये बेसिकली अगर इसको मैं एक छोटा सा एक वीडियो मैंने कैप्चर किया हुआ है, शायद स्नेहा जी ने आपको दिखाया होगा. हाँ, मैंने देखा है, मिथुन सर ने वो शायद नहीं देखा है, तो आप एक बार बता दीजिए तो देख लेते हैं वो. अच्छा, राइट. थोड़ा छोटा आ रहा होगा मुझे. कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है लेकिन. वो ऐसा ही है. एक मिनट से. हाँ, कोई इशू नहीं सर, ठीक है. एक अच्छा वीडियो बना के सर YouTube पे डाल दो. हम लोग किसी को भी आपको प्रेजेंट करना हो, वो लिंक शेयर कर सकते हो आराम से. Literally sir, वही that is something which like you know was the idea, but ये लॉकडाउन के चक्कर में थोड़ा सा हम पिछड़ गए हैं, तो just sorry for about that. No worries sir, there is nothing to be sorry about. We have gone through that. शायद आवाज नहीं आ रही है. एक मिनट सर. एक काम करता हूँ, मैं ये वीडियो तो सर को दिखा देता हूँ, मेरे पास है. मैं एक बार और एक कोशिश और कर लेता हूँ. Good evening. We are on the app. Is the voice audible? Yes, it's audible. System. The front screen of the app basically is showing you all the devices which are registered from this particular app. The one basically which is showing green color. Good evening.
we are the thing which I am highlighting is the one which is like currently connected to the device, and the device is very near to the app which is there, and it is connected through Bluetooth. Now let's try to basically move ahead, and we would like to do a connection. Okay, so here we go. We just navigate into that particular device. This device, this app shows all the list of the security personnel who are being registered in the app. Now, what we want to do is we can add an employee. For that, there's a button for add employee, which is nothing but the security guard. And the other thing which we would like to do as part of the setting up is setting up the guard to a patrolling system, for which we now let's try to basically put in the app. Now what we want to do is we can add an employee. For that, there's a button for here in the settings part. You see. Sorry to interrupt. We can just take वो जो कैसे आपने आगे जाके वो डिवाइस का दिखाया ना, जो स्कैनिंग वाला पार्ट, ये ऐड वगैरह तो अपन ट्रेनिंग के टाइम कवर कर लेंगे जो भी होगा. फंक्शनैलिटी वाइज थोड़ा आगे चले जाते हैं इस वीडियो में अपन, जहाँ पे आपने वो डिवाइस एक्चुअल डिवाइस दिखाया है. ओके एक्चुअल डिवाइस दिखाऊं ना. अच्छा, तो यहाँ पे सर एक बार थोड़ा सा मैं मिस्टर मिथुन को जो चीज देखनी थी वो एक बार, जैसे हाउ टू सेट अप दी गार्ड रूट नेम एंड स्टफ, मैं दो छोटे दिखाऊंगा. हाँ ठीक है सर, चलेगा, कनेक्ट हो जाए बेसिक. मैंने फिर उनको आपने चूंकि देखा हुआ है तो एक बार उनका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा. श्योर. ओके. The root. Let's say I give a root name as City High. Let's say this is a complex, building complex where these guards are doing the patrolling. So, and City High is the name of the complex basically, which I am putting it as City High complex as the root name. I save this particular thing. The moment I save, right now it is basically showing that there are no checkpoints being defined over here, and there's an option to do the adding the checkpoint. So I go to add checkpoint option, add from checkpoint list. Maybe you would have already made the checkpoints earlier. You can pick up checkpoints from there, or you can create new checkpoints. So I would like to create a new checkpoint. The moment I select the new checkpoint, basically it is asking me add checkpoint name. Let's say I give the checkpoint name as main gate, and the checkpoint ID as this is the card ID which is going to be there. So I am giving the card number as 56565656. So okay, I will give it as 56565657, and this I will submit. This particular checkpoint is created. I want to add another checkpoint, so I will go to add checkpoint once again. Create new checkpoint. I go to create new checkpoint. The checkpoint name, let's say, is parking area, PARKING, parking area, and the checkpoint is 56565657. So this says I will give it as 5656. So this is the card ID, which is basically going to be stuck at those pointers basically. This particular checkpoint I have created. Enter the checkpoint address here, so I can even give the checkpoint address, and it may pick up the checkpoint address even from the GPS location, for which I just have to click the GPS button over here. To continue, turn on the device location, use Google location. I say yes. Okay, so it will automatically pick up the Google location, allow tracking. Okay, so like geofencing, basically what we are doing over here. Correct, sir. So even if you pick up the location directly from the GPS this thing, that also can be tagged. तो आप basically वो बंदा कैसे move कर रहा है
अगर वो ओपन टू स्काई मूव कर रहा है तो आप उसकी इवन जो ट्रैकिंग है वो भी आप ट्रैक कर सकते हो. Perfect. Okay. Right. So this is like the end of video 1. Then I just Good evening. I just play the last video 2. video, I had shown you how to add 2 checkpoints. Likewise, I have added the checkpoints basically, which is being shown in the screen. So checkpoint ID 565657 being the first ID, which was being defined as main gate. The checkpoint ID 565656. I skipped some of these parts, Umangji. Right. That's fine. The overall concept is clear, sir. Right. Has come. Then the third point, if you see, like on the top left, there's a checkpoint ID, that is the order in which the guard is supposed to travel. The third checkpoint is 565659, which is garden area of that particular complex. The fourth checkpoint is 56565660, which is community hall. HALL has not come anyway. That's a fallacy. We will correct it. Then checkpoint 5 is 56565662, which is terrace area, and the sixth checkpoint is 56565663, which is back gate. So this is it. So now these are all the checkpoints which you define once basically in the mobile app, So this is one-time activity which you will do, because all these things would be going or maybe would have to be done once basically to create the master. So this is one-time exercise which you will be doing. So you will be adding the routes, and against the routes, whatever checkpoints are there, and the checkpoint IDs is what basically is going to be mapped over here, Understood. So what I also understood was, if it's a generic name, so for all my 18 factories or 20 factories, I can directly pull that list, correct? If it is already there. You can do that, but then the thing is, in each factory, the generic name may be generic, but against that particular name, the ID, that checkpoint ID, जो number मैं दे रहा था 5656565859 वगैरह, these are the card numbers which are actually stuck at that particular area. So वो जो आपका मे बी आपकी इस फैक्ट्री में एक नंबर का कार्ड है, दूसरी फैक्ट्री में दूसरे नंबर का कार्ड रहेगा बेसिकली, तो वो आपको एडिट करना ही पड़ेगा, वो वन टाइम है सर. वो अगर आप चाहेंगे तो वो आप एक एक्सेल में देंगे तो हम इंपोर्ट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. 6 checkpoints which are being made. Just a minute, Manoj ji. Mithun ji was asking something. Just a minute. Sorry. Manoj ji, can we insert a particular area in between this route or something? Particular area, मतलब not particular area. For example, I want to insert one more checkpoint between this. Take example garden area and community hall के बीच में मुझे एक area और insert करना है, तो is it possible? Yes sir. Actually, मिथुन सर, आपको बेसिकली ये जो आपका जो चेक पॉइंट्स आपने डिफाइन किया हुआ है, तो मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया है. आपके जिस तरह से चेक पॉइंट्स आपने एक बार बना लिए मान लीजिए, और अब आपको ये लगता है कि आपको एक बीच में चेक पॉइंट और घुसाना है, जो पहले आपने जब ओरिजिनल प्लान किया था तब नहीं था, लेकिन अब आप डालना चाहते हैं, करेक्ट है सर? हाँ, वो एडिट कर सकते हैं सर. आप एडिट करके बीच में एक अगर आप और चेक पॉइंट घुसाना चाहें तो आप घुसा सकते हैं. वो इसमें वीडियो में कैप्चर किया हुआ नहीं है, बट देन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रीऑर्डरिंग. मतलब हम एक और चेक पॉइंट बना देंगे और चेक पॉइंट बना के उसको रीऑर्डर कर देंगे. मानिए 3 और 4 के बीच में एक और चेक पॉइंट बनाना है, तो मैं लास्ट में एक चेक पॉइंट बना दूंगा और लास्ट में चेक पॉइंट बना के उसको 4 नंबर दे दूंगा. देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है, तो उसको 4 दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो 4 नंबर पे चला जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. राइट सर. तो मैं वीडियो को थोड़ा सा वापस and now the person is supposed to do the next setting, which is like communicating with the device and downloading this particular tour which has been created. So for that he goes to assign devices. Right now there's no. तो अभी सर ये जो है, ये अभी आपने जो भी कुछ किया, you did it on your mobile app and you created a master.
That master was basically a route and against the route the checkpoints. बट ये आपने जो भी क्रिएट किया, जो आप कंप्यूटर पे क्रिएट करते थे, अब वो आप अपने मोबाइल ऐप पे क्रिएट कर लिया, और मोबाइल ऐप पे क्रिएट करने के बाद में अब डिवाइस जो आपका सिक्योरिटी गार्ड लेके जाने वाला है टूर करने के लिए, उस डिवाइस में इस इंफॉर्मेशन को आपको डाउनलोड करना है. तो ये वाला पार्ट अभी चालू होने जा रहा है सर. I think we are in sync, right? Yes, yes. Yes, sir. Assigned devices for the City High complex, which is being shown on the top left corner, as City High complex, which is the route, and that particular route has got 6 checkpoints, and right now there's no device being assigned. So let's say I want to do the assign a device. So I say download route. So the moment I say download route, it shows me list of. तो ये सर ये भी क्या है, अभी ऐसा समझिए कि आपके पास में एक पर्टिकुलर प्लांट में 5 डिवाइस है. ओके. एक एग्जांपल लेके बोल रहा हूं, आपके एक जगह पे 5 डिवाइस है और कौन सा डिवाइस कौन लेके जाएगा आपको नहीं पता. ओके. आपके पास टेबल पे 5 डिवाइस पड़े हुए हैं. आपके सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने के पास में कोई बंदा आया और उसको सिक्योरिटी सुपरवाइजर बोलता है कि भाई तुम सिटी हाई कॉम्प्लेक्स में जाके टूरिंग करो. तो उसने क्या किया, यहाँ पे कोई भी एक डिवाइस उठाया और डिवाइस उठा के सिटी हाई कॉम्प्लेक्स का जो टूर है वो सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करके जैसे ही डिफाइन करने जाएगा, उसको जो 5 डिवाइस है उसकी लिस्ट नीचे आ जाएगी, जिसके भी अपने नाम दिए हुए, जैसे सॉफ्टवेयर रूम डिवाइस, R&D रूम वगैरह वगैरह. ये डिवाइसेस के नाम आपने दे रखे हैं, मतलब फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन. मान लीजिए स्टिकर्स लगा रखे हैं आपने हर डिवाइस के ऊपर में, तो आपने जो डिवाइस पिकअप किया उस डिवाइस के पीछे आपने नाम देखा, हाँ सॉफ्टवेयर रूम डिवाइस है, और आपने सेलेक्ट किया कौन सा टूर कराना है. आपने टूर सेलेक्ट किया, डिवाइस सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद में डाउनलोड मार दिया, और ये डिवाइस अब सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया. ये वाला पार्ट दिखा रहे हैं हम लोग अभी. तो ये लेकिन मैंडेटरी स्टेप नहीं है ना ये सर. ये वन टाइम मतलब ये अगर मान लीजिए अगर ऐसा है सर, अगर ऐसा है कि आपने डिवाइसेस और ट्रिप्स फिक्स कर दिए हैं कि ये डिवाइस के लिए ये ट्रिप है, ये डिवाइस के लिए ये ट्रिप है, ये डिवाइस के लिए ये ट्रिप है, मानिए एक बार सेट कर दिया, और अब डिपेंडिंग ऑन विच गाय इज गोइंग फॉर विच पर्टिकुलर ट्रिप, उस केस में उसमें डाउनलोडेड ही रहेगी, वो बंदा वो वाला डिवाइस उठाएगा और वहां पे चला जाएगा बेसिकली. जस्ट इन केस ऐसा होता है कि आपका ये सिटी हाई कॉम्प्लेक्स वाला जो डिवाइस है वो सिटी हाई कॉम्प्लेक्स में नहीं जाकर साउथ सिटी कॉम्प्लेक्स में जाके अभी पेट्रोलिंग करनी है, तब उस केस में ये करना पड़ेगा आपको. ओके. और मतलब इसमें बेसिकली मेरे पास मैं इसको अदर वे देखता हूँ एज अ, कल को मेरा एक डिवाइस खराब हो गया समझो, करेक्ट, मैं एक ही डिवाइस से 2 जगह का भी पेट्रोलिंग कर सकता हूँ. एब्सोल्युटली राइट सर, यू गॉट इट राइट, एब्सोल्युटली. मैंने आपको खाली क्या करना है, डिवाइस को अपने मोबाइल ऐप के बगल में लेके आने का है, और वो नया वाला जो नया वाली जगह जिसमें रूट में आपको पेट्रोलिंग करानी है वो डाउनलोड कर देना है. परफेक्ट है, ठीक है, अंडरस्टूड. तो ये बेसिकली हमने 3 टाइप्स रूटिंग कर लिया. जो मैपिंग है आपका, एक डिवाइस मैपिंग हो गया, एक रूट मैपिंग हो गया, मास्टर्स जो बोल रहे हैं हम लोग, और चेक पॉइंट्स का मैपिंग हो गया. ये 3 टाइप के मैपिंग हम कर रहे हैं. करेक्ट सर, करेक्ट. तो ये आपको करके आपने डिवाइसेस को रेडी कर दिया. सो ये आपने डिवाइसेस को रेडी कर दिया. ये जो है इसको the communication was happening from the app till the device, and now since this particular there is no error being generated, that means the route has been downloaded. So if I see the City High complex and I want to see the checkpoints, basically these checkpoints have been downloaded over here. Sorry. So device name software room device is basically something which is being shown. तो ये सर, ये जो आप क्वेश्चन बोल रहे थे, अब ये सॉफ्टवेयर रूम डिवाइस का नाम है मानिए, और आपका चेक पॉइंट है सिटी हाई कॉम्प्लेक्स. आपने सिटी हाई कॉम्प्लेक्स का जो चेक पॉइंट पेट्रोलिंग गार्ड टू पेट्रोलिंग का जो रूट है वो आपने सॉफ्टवेयर रूम डिवाइस में डाल दिया वन टाइम, और डाल के वहां पे स्टिकर लगा दिया कि जो भी बंदा सिटी हाई कॉम्प्लेक्स में जाएगा ये वाला डिवाइस उठा के लेके चला जाएगा.
जस्ट इन केस सॉफ्टवेयर रूम डिवाइस सिटी हाई कॉम्प्लेक्स में या के साउथ सिटी कॉम्प्लेक्स में जाने का है, उस केस में आपको वापस एक बार ये वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. करेक्ट करेक्ट, अंडरस्टूड, ठीक है. Which the city high complex route has been downloaded. Okay, so this is something which is the downloading of the route and the checkpoint name to the device. So now the device is ready for the patrolling. Now the next video we are going to show how the patrolling is being done. Thank you. So अभी मैं सर आपको एक वो जो डिवाइस साइड वाला, हाँ हाँ, यस सर. हेलो जी बोलिए ना सर. सर ये आवाज एक मिनट, शेयर नहीं चल रहा है. नहीं, शेयर तो चल रहा है. So you see the device right now. Is it audible, sir? You see the size. The size is very small. It can be taken into a hand, can be carried into a pocket. It's a very small device. There's a biometric reader over here, which is currently not reading anything because the guard has not gone to the patrolling point. So now let's say we are creating a patrolling point. In the first line, you see welcome to FIPL, which is maybe your company's name. Then it shows date and time in the second line. And the third line, it is showing the uncaptured record count. And in the fourth line, it is showing A means assigned device. It is already having a root over here. 60% is the battery percentage right now. Then there are two more statuses basically which are there, which is for our own internal use. So now here we go. This particular device is being being taken, and we are just making into the city high route and going into the first card. Okay, so the first card is being scanned. The moment the first card is being scanned, the biometric basically is automatically lifted. The person puts his finger, the name comes over here, and it is showing the next checkpoint is something which is going to come in the last line, which is the city high complex, and the next checkpoint is parking area. Okay, so it is showing 1/6. 1/6 means the first checkpoint has already been done, and now the next checkpoint is the parking area in which the guard is supposed to go. Now let's say he goes to the second checkpoint, guard 2, and it shows the card. So यहाँ पे कुछ वीडियो में गड़बड़ हुई थी. The moment this particular card is being shown, it is asking me to put the finger once again. I being the security guy, I put my finger, it gives my name and a number. Along with that, it gives the next checkpoint name, which should be the garden area. So it is City High Complex in the first line, and the next checkpoint name is garden area, which is being shown. Now the guard goes to the third checkpoint. The third checkpoint, he shows the card to the third checkpoint, and the guard again puts his finger at this third checkpoint. The moment he shows the third checkpoint, the next checkpoint name is going to come, which is community hall. Next checkpoint name, which is going to come as community hall. On the display, if you see the top line, it is showing community hall over there. And now the fourth checkpoint basically is being captured, and again the fingerprint is being put. The next checkpoint is terrace, which is come over here, and the last checkpoint basically is now going to be covered by the security guy. Again, the last checkpoint is being taken, and it is being given. So the other card was being scanned, which was not same as the next checkpoint card basically, So that is why it gave an error. 63. Yeah, so last checkpoint has come. So I have put my last checkpoint. So if he skips any checkpoint, then you will have this particular problem. Checkpoint name is going to come over here. Yeah, right. The City High Complex, basically the next checkpoint name is that gate, which is 63. So the 63 checkpoint has come.
Again, I being the security guy, I put my finger and it is going to capture my fingerprint. No, I have not been successfully do it, So I will again scan my card. We have created the error. So this might happen during the actual work, Yeah. So I have done it successfully. It gives my name and no more checkpoints. So that means he has already come to end of the entire guard tour patrolling. Okay, so the device part is now done, and the device is having all the records. It is showing 109 by 6. That means this guy has done 6 new records, which is showing in the third line of the display of this particular device. Okay, so we take a pause here. So, sir, so far, any questions, sir? Mr. Muni, With regards to video, we are quite clear, but while watching this video, we just realized, see, our particular manufacturing units are quite high on dust. So how effective, like whether like stickers would sustain the dust and everything, or that is one question that popped up in our mind. So dust is something basically, as long as the dust is not there on the finger, I mean it is not full of dust basically. वो उसको फिंगर रखने के पहले अपनी फिंगर को थोड़ा सा साफ करना जरूर पड़ेगा. Sorry, I interrupted. For security guards, we don't have any challenge. Like the device, our device and security person's hygiene and everything will be maintained. My question is for the sticker. Like there will be a lot of dust settled on the sticker. So will that impact? On the speaker. Yes. सर देखिए स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, तो आपको बेसिकली सॉरी कैन यू हियर मी? Yes, I can hear. About speaker, which speaker, the card you are talking about, which is a checkpoint. Hello. Sorry, we are unable to hear you. Like I believe some network issue. I will answer this question. You are talking about speaker or sticker? No, stick the checkpoints, basically the checkpoints. RFIDs. Does not matter. The sticker, the checkpoint basically is a card which is fully PVC coated card. It does not matter with dust, water, or anything. Basically, it is actually bolted. Just we needed reassurance. I have read about it, to be honest. Right. I just wanted a reassurance, because that is the biggest challenge that we see right now. To be honest. Is the dust on the checkpoint stickers if we may face. So if it is PVC coated and there is no such challenge, it is water and dust doesn't make any difference, then we are perfectly good with it. Right, right. So I will take the fourth video now. The fourth video is basically to show you the reports and everything. सर कुछ मुनीष साहब कुछ बोलना चाहते हैं? Another fine. So Manoj, like suppose if we go on a trip and we find during the tour we find that one of the say the checkpoints tag, I would use word tag, okay? So one of the tag is not functioning or it is damaged by one of our labor. Right. So is it possible for him to skip that particular point and move to next, because or else like the guard won't be able to move further at all? This is interesting. See, first of all, these cards are passive cards. So until it is stolen by someone. Right, I mean, this particular thing will not happen. कि card is inoperational or anything basically. वो नहीं होगा, क्योंकि these cards are all like passive cards and they are transponders. They are going to work as it is basically. In case the card is stolen, if the guy goes and found that the card is stolen, that means basically he's not being able to do that particular checkpoint or the tag. Then in that case, if he goes to the next checkpoint, this particular problem might happen that he will not be able to do subsequent checkpoints, in which case he has to do a short close, basically,
So but one on first trip probably I'll do a stop, short closer or anything. But say for next trip onwards, I know that that particular card is missing. Then I have to make those changes through app. Like I have to take out that point and then I have to proceed. राइट सर. सो ये जो अभी आपको वीडियो दिख रहा है, वीडियो में जैसे आपका ये जो पूरा रूट बनाया हुआ है, मेन गेट, पार्किंग एरिया, गार्डन एरिया, कम्युनिटी हॉल, टेरेस एरिया, बैक गेट. अब मान लीजिए गार्डन एरिया का आपका टैग खत्म हो गया है, खराब हो गया है, जो भी हो गया है, या आप इसको निकालना चाहते हैं, तो आप इसको एडिट कर दीजिए. इस टूर का जो आपका चेक पॉइंट्स हैं उसको वो करके गार्डन एरिया हटा दीजिए, वापस री डाउनलोड कर दीजिए. डिवाइस उसको बेसिकली अभी कैप्चर नहीं करेगा, एक्सपेक्ट नहीं करेगा उसको. Is it clear, sir? Yes, sir. Doubts are clear. ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, ये वाला जो आपको जो रूट दिखाया है, इस रूट को वापस आपको एक बार रीसिंक करना पड़ेगा. हाँ वही मैं सेम चीज ही समझ गया सर. करेक्ट है सर. ओके. सो इट्स ऑल अबाउट द बेसिकली ये लॉजिक समझाना और समझना इम्पोर्टेंट है. राइट. डिवाइस. अच्छा ये है, अगर मैं रूट डिफाइन करता हूँ तो, अगर मैं जनरली कोई रूट डिफाइन नहीं करता हूँ, हाँ, तो फिर मुझे ये सब हेडेक है ही नहीं. करेक्ट. अगर आप रूट डिफाइन नहीं करेंगे साहब, तो आप ट्रैक कैसे करेंगे कि कौन सा बंदा कब कहाँ पे होना चाहिए या किसको कहाँ से कहाँ जाना है? वो मतलब ये मुझे जो रूट है ये डिफाइन करना मैंडेटरी है ही है. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ साहब. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप गार्ड टूर पेट्रोलिंग कराना चाहते हैं, कि आपको ये तब ये डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए कि आपका ये वाला टूर में 8 घंटे की ड्यूटी में हर घंटे में मान लीजिए आप चाहते हैं कि बंदा एक गार्ड टूर करे, तो आपको, और गार्ड टूर जब करेगा तो उसको इस रूट से जाना पड़ेगा ताकि आप वो कुछ मिस ना करें, आपके पास वो सारा डेटा हो जो आप चाहते हैं. तो उस केस में अगर आप ये वाली फिलोसॉफी फॉलो करेंगे, तब आपको जो डेटा मिलेगा, रिपोर्ट्स मिलेगा, वो आपको ऑर्गेनाइज मिलेगा. वो मैं दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में. वेरी ट्रू. Completely agree. I completely buy the concept, sir. I am not differing in that. I am just saying, suppose मैं एक डिवाइस एग्जांपल में सुपरवाइजर को दिया हूँ, जिसको मैंने बोला है कि भाई एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि वी आर फेसिंग से हमारा नाइट शिफ्ट भी चालू है, तो मुझे नहीं चाहिए कि वो भाई सारे पॉइंट्स पे घूमता रहे. वो ये ध्यान रखे कि लेबर क्वार्टर में क्या हो रहा है और फ्लोर पे क्या हो रहा है, कि जाके कोई गार्ड मतलब कोई लेबर सो नहीं रहा ना, एट द सेम टाइम मेरा प्रोडक्शन चालू है ना. दो ही पॉइंट उसको देखना है. तो उस केस में मुझे रूट बनाने का जरूरत नहीं है. मैं खाली ये 2 चेक पॉइंट्स को मॉनिटर करूंगा. पॉइंट समझ रहे हैं सर? मैं समझ गया. तो उस केस में सर मैं आपको ऐसा ही बोलूंगा कि आप वो बना दीजिए. आप मतलब वो एक चेक पॉइंट बना, क्योंकि आपको कोई लिमिटेशन तो है नहीं चेक माने रूट्स बनाने की. आप उसको भी एक रूट बना दीजिए और रूट बना के बेसिकली डिवाइस में डाउनलोड कर दीजिए. ठीक है. मतलब वो ओके, फिर मैं प्रोडक्शन रूट बोल के ऐसा कुछ बना सकता हूँ या ऐसा. ठीक है, फेयर है. हाँ, मतलब ये उससे क्या होगा ना, आप रिपोर्ट जब देखेंगे साहब, तो आपको रूट के अगेंस्ट में रिपोर्ट्स दिखेंगी, जो मैं भी दिखाने जा रहा हूँ बेसिकली. हाँ. So at 6:30, the first point was main gate. 6:30 again, the next point was parking area, garden area, community hall, terrace area. तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ. So this is the way basically I have traveled along with the time. Just one sec. I will just open it from my WhatsApp. Then it will become slightly bigger. So let's say I want to drill down. The moment I want to drill down, I just click over here. It shows me all the points which has been covered. So at 6:30, the first point was main gate. 6:30 again, the next point was parking area, garden area, community hall, terrace area, and back gate area. So this is the way basically I have traveled along with the time. It is showing on a timeline chart. Basically. So this is, sir, this is after the device has been synced with the mobile app. So the supervisor is seeing all this basically without taking out the report. वो directly देख रहा है कि बंदा कहाँ घूम के आया, क्या किया है. एक second, just hold on this side, sir. Yeah. So this is showing me that okay, Mr. Manoj Kumar, उन्होंने कौन से पॉइंट कितने बजे फर्स्ट और स्टार्ट कहाँ से किया 6:30 को, और लास्ट पॉइंट 6 इसको आ गए. ओके. राइट. Sir, shall I pause? Sure. No, we can start. We are just having a glance on that. We can continue now. I come to reporting section, which is here.
and I show view report, download report. I click download report and I select the date range. Let's say I select the date range as 1st May to today's date, which is 10th May. Set. And these are various type of reports which are there, monthly report and route wise report. So let's say I want to see the monthly report for this date range. I select monthly report, select download report option. The moment I select download report option, it is going to open the thing basically in as a PDF file. So it is like, you know, opening the PDF file over here. It is like, you know, asking me the file prediction password so that, you know, this particular data is being captured. सर तो ये जो आपने अभी मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये सब कुछ आप लोकली कर रहे हैं मोबाइल ऐप के जरिए। मतलब जो शिफ्ट सुपरवाइजर जो है उसको अगर रिपोर्ट देखनी है इन अ रीडेबल फॉर्मेट, ये जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ, मतलब उस इतनी अच्छी रिपोर्ट, इतनी ऑर्गेनाइज रिपोर्ट देखने के लिए भी उसको पीसी की जरूरत नहीं है, कोई प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड सर। With the password protected. And the monthly report, like, you know, it shows the first and the last out report basically, and it is showing as present. Now let's say I want to see the moment report. I go back, I select the route wise report, and route wise report again for the same date range. I download the report. The moment I download the report, it is like, you know, going through again the same process. I define the thing. सर तो यहाँ पे उमंग साहब, अभी ये जो रिपोर्ट आप निकाल रहे हैं पीडीएफ बन रही है, और जो पीडीएफ बन रही है आप इसको मोबाइल ऐप के जरिए शेयर करना चाहते हैं या व्हाट्सएप के जरिए शेयर करना चाहते हैं, तो दिस इज समथिंग लाइक, यू नो, आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं हुई, कुछ भी जरूरत नहीं है। तो आपका जो शिफ्ट सुपरवाइजर है उसको कंप्यूटर का नॉलेज, सॉफ्टवेयर का नॉलेज कुछ भी नहीं चाहिए बेसिकली, यू नो। नहीं, बढ़िया है सर ये। ओके, ग्रेट। और प्लस पीडीएफ है तो टेम्परिंग भी नहीं हो सकती, मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं। देखिए अभी क्या है, सीटीआई कॉम्प्लेक्स रूट का नाम आ गया तो आपका प्रोडक्शन एरिया रूट का नाम आ जाएगा, ऊपर में मनोज भंडारी नाम आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गया, डेट रेंज आ गया, और जो आपने चेक पॉइंट्स डिफाइन किए हुए थे वो चेक पॉइंट्स की हेडिंग आ गई बेसिकली। ये सब कुछ मोबाइल ऐप पे हो रहा है। सीटीआई कॉम्प्लेक्स, पर्सन नेम इज मनोज कुमार भंडारी, एम्प्लॉय नंबर है। हाँ, तो 10th में को हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई 6:30 बजे मेन गेट से स्टार्ट हुआ, फिर पार्किंग एरिया का भी 6:30 दिख रहा है। करेक्ट। वो क्योंकि वो मतलब हम लोगों ने ऐसा ही डेमो के टाइम पे कैप्चर किया था बोल के। करेक्ट। वेरियस checkpoint names, main gate, parking area, garden area, community area, terrace area, back gate and stuff basically. So on 9th there is one report, one set of data. On 10th again another set of data is there at 18:30 and so on and so forth, with the last punch is 18:31 and all. So this is something which is like, you know, the reporting which is being given, and it also shows the various things like, you know, when the report has been downloaded and so on and so forth. So this is timestamp data. So that is. So यहाँ पे एक और चीज इंटरेस्टिंग है, देखिए यहाँ पे सिटी हाई कॉम्प्लेक्स में मेन गेट, पार्किंग एरिया, गार्डन एरिया जो हेडर है, अब फिर उसके बाद वो सेम मनोज भंडारी ने रूट 3 पे भी ट्रैकिंग की है, और रूट उसका नाम जो है चेक पॉइंट 5, कस्बा 3Y, चेक पॉइंट 3, कस्बा 2, टिनी चेक पॉइंट 96। ये उसके माने एक ही बंदा मल्टीपल रूट्स पे जा रहा है, और एक बंदे की आपको अगर परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखनी है कि वो किस किस रूट पे गया है, कब कब गया है, तो आप एक बंदे की पीरियोडिक रिपोर्ट देख सकते हैं फॉर वेरियस रूट्स बेसिकली इन विच ही हैज गॉन। तो वो अलग अलग डिवाइसेस लेके गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अलग अलग डिवाइसेस से सारा डेटा आपके मोबाइल ऐप पे आ गया है, और मोबाइल ऐप पे आपने कंसोलिडेट करके आपने मनोज भंडारी का परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट रूट्स देख रहे हैं। हाँ, मतलब इस केस में जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक डिवाइस हम किसी एक इंडिविजुअल के साथ मैप कर दें कि भाई तुम कहीं भी जाओ तो ये डिवाइस लेके जाओ। राइट, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए आप ऐसा सोचिए, इसमें दो टाइप की मैपिंग हो सकती है, या तो आपने डिवाइस को रूट के साथ मैप कर दिया कि अगर आप ये रूट पे जाओगे तो ये डिवाइस लेके जाओगे, ये एक तरीका है। तब वो जो भी बंदा, क्योंकि एक रूट पे एक ही बंदा रहेगा किसी भी टाइम पे बेसिकली,
ठीक है, नॉर्मली ये होता है। तो अगर आपने ये कर दिया कि आपने रूट के साथ में डिवाइस को मैप कर दिया है, तो आपने उसको एक बार डाउनलोड करके डिवाइसेस पे डाल दिया कि भाई ये दिस रूट इज सिटी कॉम्प्लेक्स, दिस रूट इज बेसिकली रूट 3, दिस रूट इज रूट 2 और व्हाटएवर। तो अब मैं आया, मेरे को अभी रूट 3 में जाना है, तो मैं रूट 3 वाला डिवाइस उठाऊंगा और चले जाऊंगा बेसिकली, ठीक है। अब दूसरा ये हो सकता है कि मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि मैंने सिक्योरिटी गार्ड वाइज बेसिकली जो डिवाइसेस देना चाहता हूं, जो जनरली नहीं होता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड फिर वो बंदा डिफरेंट रूट्स पे जाएगा, तो आपके पास में बेसिकली वो मतलब आपको वो स्टेशन पे नहीं आएगा, आपके बेस स्टेशन पे नहीं आएगा। तो नॉर्मली जो करते हैं, आप चाहेंगे कि भाई आप डिवाइस के ऊपर में एक पर्टिकुलर गार्ड को आपने डिवाइस दे दिया और वो गार्ड जिस भी रूट पे जा रहा है वो वहां से करे, ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये किया हुआ नहीं है। लेकिन जब आपका डेटा मोबाइल ऐप पे आप सिंक कर देंगे, तो इस तरह की रिपोर्ट आपको मिल रही है। तो एक बंदा जब फर्स्ट डिवाइस लेके गया और सीटीआई कॉम्प्लेक्स में गया था, उसने बेसिकली मनोज भंडारी ने ये ट्रैकिंग की, और वो फिर रूट 3 पे गया तो दूसरा डिवाइस लेके गया, क्योंकि रूट 3 का डिवाइस दूसरा है। लेकिन जब हमने रिपोर्ट निकाली मनोज भंडारी की, तो उसकी रूट 3 का भी डेटा यहाँ पे मिल गया मुझे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर इसमें सर जैसे ये सारा चीज हो गया अपना। हाँ सर, मैं इसमें एक और छोटा सा एक चीज और दिखा दूं, तो फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा ओपन डिस्कशन में चले जाता हूँ। मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। जी जी। तो मैंने ये जो आपको रिपोर्ट दिखाई है, ये रिपोर्ट बेसिकली गार्ड टू पेट्रोलिंग रिपोर्ट, मंथली पेट्रोल, हाँ ये वाली रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैंने अभी यहाँ पे मेरी वीडियो में कैप्चर करी हुई नहीं थी। ये सर, ये एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मंथली रिपोर्ट है। ये मंथली रिपोर्ट जो है, ये मैंने मल्टीपल बंदों की निकाली हुई है, तो इसमें बहुत सारे पेजेस आए हैं, ये सब मोबाइल ऐप पे निकला है। ये मोबाइल ऐप पे जो मैंने रिपोर्ट निकाली है, दीपक कुमार चौधरी, जो बेसिकली 482 जिसका आईडी नंबर है, वो 2 मई को सिटी हाई कॉम्प्लेक्स में 2 बार उसने ट्रेवल किया है। एक बार ट्रेवल किया है इस डेट पे, एक बार ट्रेवल किया इस डेट पे। तो मानी 2 तारीख को 2 बार ट्रेवल किया, मतलब एक ही रूट को मल्टीपल टाइम्स एक दिन में अगर बंदा करता है, तो इस तरह की रिपोर्ट आएगी। टोटल ट्रेवल टाइम कितना था वो आएगा, और उसका रिमार्क्स आएगा। ये रिमार्क्स जो है, दिस इज बेसिकली अ कंप्लीट रिपोर्ट, ही इज एब्सेंट और इट इज अ शॉर्ट क्लोज। जैसे यहाँ पे शॉर्ट क्लोज रिपोर्ट है ये वाली, देखिए 12 तारीख को उसने 2 पंचेस किए 2 चेक पॉइंट्स पे, और उसके बाद में फॉर सम रीजन he has not completed those things, so it is showing SC, and that is red color, and with the thing it is coming in SC, which means soft close, and this particular thing can be exported to Excel also. So in case you want to do some Excel kind of thing, basically you can do it, तो ये आपका ये जो रिपोर्ट है सर, ये रिपोर्ट में आपको क्या है, टोटल ट्रिप कितनी की है 1 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में, मिस्टर दीपक कुमार चौधरी ने। मुझे पॉइंट वाइज भी मिल गया कि ये एक पॉइंट को कितनी बार किया है, वो हो गया क्या? करेक्ट सर। तो इसने 11 ट्रिप्स करी है मनोज भंडारी ने, लास्ट में उसको दिखा दिया 1 तारीख से लेकर। आप अगर मान लीजिए पेमेंट कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को, तो आप देखना चाहते हैं कि उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कितना है, तो आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है कि टोटल 11 ट्रिप्स करी हैं, 7 दिन में ये 11 ट्रिप्स हुई हैं, उसमें 3 जो है इनकम्प्लीट ट्रिप्स हैं, और 24 दिन वो एब्सेंट है, और टोटल उसका जो ट्रिप का टाइम है वो 1 घंटा 45 मिनट है, विच इज बेसिकली द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन, तो ये काफी ओके सर, मतलब काफी इंफॉर्मेटिव तो है सर, नो डाउट। तो ये सर, अभी ये तो आप ये समझिए उमंग साहब कि ये सारी चीज आप मोबाइल ऐप पे देख रहे हैं। तो आपने अभी तक अपने वेब ऐप के ऊपर में लॉगिन नहीं किया। अब आपके मिस्टर जो कांता जी हैं, कांता जी को रिपोर्ट देखनी है, कि कांता जी के पास तो मोबाइल ऐप नहीं है। करेक्ट। कांता जी को अब रिपोर्ट देखनी है जो बैठे हुए हैं बॉम्बे में कहीं पे बेसिकली, तो ये जितनी भी
रिपोर्ट्स हैं, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो मोबाइल ऐप में हैं वो आपको सिंक करनी पड़ेगी आपके वेब ऐप से बेसिकली, ताकि वो क्लाउड पे दिख सके, या आपको देखनी है या कांता जी को देखनी है, किसी को भी देखनी है। एब्सोल्युटली यस। तो ये सारी जो इंडिविजुअल साइट्स के ऊपर में जो आपने डेटा कैप्चर किया है, ये सारा का सारा डेटा आपके वेबसाइट के ऊपर में सिंक हो जाएगा, हमारे वेबसाइट के ऊपर में सिंक हो जाएगा। और ये जो रिपोर्ट्स आप देख पा रहे हैं, ये रिपोर्ट्स अब मोबाइल ऐप पे नहीं, अब आप वेब ऐप पे अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन बेसिकली जो है वो भी एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। तो ये भी मेरा वेब ऐप है बेसिकली। ये वेब ऐप पे मैं दीपक कुमार चौधरी की रिपोर्ट देख रहा हूँ। दीपक कुमार चौधरी की रिपोर्ट बेसिकली अभी एब्सेंट है। मैं मान लीजिए लास्ट मंथ की उसकी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, तो मैंने दिया एक मई से लेकर मानिए दिया, मेरे को लास्ट मंथ की उसकी रिपोर्ट देखनी है मानिए। ये भी नाउ ये डेटा आपका सिंक हो गया आपके वेब ऐप के। ये मैं आपको वेब ऐप मानिए दिस इज सर्वर टू, आप यूआरएल देखिए server2.easyhrlite.com। ये मैं यहाँ पे घुसा हुआ हूँ, मैं अपने क्लाउड के ऊपर में ये पूरी रिपोर्ट देख रहा हूँ बेसिकली। तो ये क्लाउड के ऊपर में 1 तारीख से लेकर 31 तारीख का मैंने दीपक कुमार चौधरी का फिल्टर लगाया। फिल्टर लगा के बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये मैंने यहाँ पे इसकी देखी, ये मेरे को इसकी रिपोर्ट दिख गई कि किस दिन इसने पंच किया है, किस दिन पंच नहीं किया है। अगर इसको और फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे तो आपको फर्दर ड्रिल डाउन करके फर्दर उसकी मूवमेंट्स मिल जाएंगी। ओके। तो ये जो चीज है साहब, ये अभी यहाँ पे क्या एक एम्प्लॉय फिल्टर है, आप एम्प्लॉय फिल्टर कर सकते हैं। आप बेसिकली यहाँ पे ये एम्प्लॉय फिल्टर लगा रखा है। यहीं पे अगर आपका मैं ओयू फिल्टर भी दे दूंगा। ओयू फिल्टर मतलब आप प्लांट फिल्टर। हाँ वो समझ गया। हाँ वो मतलब कामता जी के लिए तो वो मैटर है कि भाई मुझे देखना है कि मेरे कटनी में अपन ऐसे बोला यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 है, तो मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट का देखना है तो मैं देख सकता हूँ। ठीक है। तो ये आपको सर ये सारा डेटा आपका क्लाउड में सिंक होने के बाद में कांता जी ये वाला ऐप पे, इस वाले वेब ऐप के ऊपर में मैंने अब वो चूंकि वो मोबाइल ऐप नहीं देखेंगे, मोबाइल ऐप आपका वो जो लोकल बंदा है वो देखेगा। तो आज तक के जितने भी गार्ड टूर पेट्रोलिंग सिस्टम बने थे उमंग साहब, वो ये थे कि गार्ड टूर पेट्रोलिंग सिस्टम एकदम डम सिस्टम है, उसका काम है खाली डेटा उठाना और डेटा उठा के ऊपर फेंक देना। लेकिन लोकली जो आदमी है उसको अगर रिपोर्ट देखनी है तो उसको वापस लॉगिन करना पड़ेगा वेब ऐप के ऊपर में, माने एक वेब के ऊपर में, और देखना पड़ेगा, विच यू आर नॉट डूइंग। क्योंकि आपको मालूम है कि आपका जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर है ना तो उसके पास टैब है ना उसके पास इतना मान लीजिए ट्रेनिंग है कि वो ये सब कर सके, यू नो। तो ये जो चीज हमने जो आपको मोबाइल ऐप बीच में लेके आ गए, इससे क्या हुआ कि अब रोज मोबाइल ऐप तो हर आदमी यूज कर रहा है, सो दे बिकम वेरी फ्रेंडली। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ डेटा दिखता है हमको बेसिकली। तो आपका एक्सेप्टेंस जो है आपके सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स में या इनमें बहुत बढ़िया हो जाएगा। नहीं नो डाउट सर, वो चीज विजिबल भी है। दिस सीम्स टू बी क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड, क्वाइट स्ट्रक्चर, एंड you have explained it really well. At least I don't have any doubt for now. Mithun ji, agar aapka kuch doubt? No, understood very well. So we are through with this, sir. We have understood this thing very well. The only, if you can create one demo ID for this web, if it is possible. So if we get a chance for our higher management, like top management, basically the owners, if needed, we can just take through. We can just log in and show them that this is a kind of dashboard where mandatory it's not required, like any data is not required. Just a login. The feel itself is very good. It's a very niche feeling. Right, sir. We will create one login for you. Demo login just to give them a feel of the dashboard overall. That's it. ठीक है सर, मैं वो कर दूंगा। मैं इनफैक्ट आपको डैशबोर्ड का एक वो दे दूंगा, लॉगिन दे दूंगा, तो आपको ये सारी चीजें वहां पे दिखने लगेंगी बेसिकली। हाँ, so that will just help us to close this thing on ASAP basis. All right, sir. And another thing, what I would request you, the options which you have proposed in the devices, like the GPS tracking, geofencing, and SIM-based devices. Right, so sir. What exactly will be a cost difference? Because there are few locations where we may prefer SIM-based devices. All right, sir. Over there, probably all our security guards are still using the feature phone. Okay. So
if that is there, then like those options also will like to explore. And then probably if things go well, then we'll start with one of the plants as a pilot, and then we can, once that success story can be taken, extended further. Sure, sir. Sure. I will give those the prices for those options, sir. Right. And Manoj, where exactly are you based like right now? Like, So we are based out of Calcutta, sir. And right now, like our development center and our like all the hardware production house, everything is there in Calcutta only. But then we have pan India presence. So we have got our people at Bombay, Hyderabad, Chennai, then Delhi, then like Gujarat में Baroda, then Odisha में Bhubaneswar, Cuttack. एंड देन लाइक आपके कटनी एरिया बोले तो एमपी में MP? हाँ एमपी में से रायगढ़ बोल के एक जगह है, रायगढ़ में हमारे बंदे हैं। हाँ, रायगढ़ है, राइट। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बट वो हाँ नहीं होगा वो बेसिकली नो। So the way I look at it is like the reason I confirmed that was, suppose, so when if we go for the product buyout, so what exactly support we'll be getting, like well, our security guards will be given a training at least once, so that the entire that any doubts if they have, they can understand that very well. At least once we'll be needing that training. So will that be extended from your end? How will that help? So we will create a webinar, and in that webinar, we will ask all your security guys, basically two type of webinars. Basically, which one will be for security supervisors, so that they can actually use the mobile app. And this mobile app जब हम उनको use करवाएंगे, तो हम उनका पहले login create कर देंगे, ताकि वो login करके देख सकें basically, you know. Okay. So training we will extend from the अब तो ये Zoom पे या Teams पे जैसा भी हो सकता है वैसा हम करवा देंगे सर। स्काइप पे मेरे को थोड़ी आज प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी सर। नहीं नहीं, अरे कम ऑन सर, ये तो टेक, ये नया चीज है हम सबके लिए, कोई ऐसा नहीं है। एंड इन फैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीम ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हैज गिवन अस अ बेटर एक्सपीरियंस टू बी, वो स्काइप बोलने के लिए है, बट ओवरऑल लुक एंड फील इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा वॉइस भी ज्यादा क्लियर आ रहा है हमें। Oh, great, sir. Thank you very much. Maybe whatever happened for good, you know. I mean, I actually was very tensed when I was not able to talk and like not able to communicate through Skype ID, Skype this thing, link. So somehow God was great that this particular thing had to happen in nice manner, and I could communicate it through another channel, sir. तो आई होप सर अभी जो एक हमने ये आपसे 1.5 घंटा लिया और 1.5 घंटा बेसिकली लेके आपका जो डाउट्स है वो क्लियर किया, इसमें अब इट इज गुड टू एक्चुअली नाउ हैव अ काइंड ऑफ फील as well as like the expectation which you have, whether they are being handled by us in a proper manner or not, this is the idea which I wanted to actually run this demo for, so which I want to ask you if there's anything which comes to your mind which is not being covered in my presentation and discussion. Ask Sneha ji to write me a mail, or she can communicate with me anytime, or my mobile number I'm just sharing in the chat, so you can like call me up anytime basically and get this information basically, Sure, no, we will definitely just give us some time. I'll have a word with Mithun ji as well. Right. So and if there is anything, we will definitely get back to you. Right. And for now, even we would like to wind up, because I believe Sneha has scheduled some another meeting as well. Right, sir. So we'll continue on that. But again, maybe tomorrow or day after, I'll definitely catch up with you. Sure, sir. Sure. That will be great. Sneha ji will share my mobile number in that case, basically. Sure. So I already have it, to be honest. Sneha and I am very closely working together. So we have shared the numbers. And I'll ask Sneha, or I'll myself share my details with you, so that we can be connected. That will be very nice of you, sir. That will be very nice of you. It was really wonderful, Umang ji, to talk to you, and you really made me feel at home and made me feel as if I am basically in front of you. And the way all the interactions has gone, it was really very, very positive interaction. I feel very good to speak to you and Sneha ji as well as Mr. Muni.
who was there as a person, like trying to match his ideas with the product which probably need to be deployed at the plant. So with this, I think we can sign off today, and I really want to thank you for everything, sir. And thank you, Snehaji. Thank you. Thank you, Manojji. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, Amanji. Thank Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.